Hello aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where our mission is to impart 100% free complete coachings of various competitive exams just like UGC NET, CTET, BTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd, and even much more courses we are planning to launch in the future throughout India, especially for those students who are not able to avail these exclusive and expensive courses due to their financial limitations or any kind of constraints. So it is an absolutely free of cost complete educational hub where each and every Indian student can get quality education at zero cost. So those students who haven't subscribed this channel yet, please subscribe it. And I also welcome new joinees who subscribed this channel recently. So in UGC NET Preparational Paper 1 series, the ninth unit, that is People Development and Environment of UGC Paper 1, is going on this channel in a sequential manner, in which today I will cover the next subtopic of environmental issues. So let's start with the presentation. Environmental issues, इसको हम तीन टाइप्स में या तीन भागों में डिवाइड करेंगे, बिकॉज तीन तरह के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं. एक लोकल लेवल पे भी होते हैं, रीजनल लेवल पे भी होते हैं और ग्लोबल लेवल पे भी होते हैं. तो तीन तरह के इसमें जो है वो डिविजन्स करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़. सबसे पहले आज की प्रेजेंटेशन में इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते क्या हैं उसके इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी पेपर 1 पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है. ठीक है जी. और ऐसी टर्म्स होती हैं इस टॉपिक के अंदर जिन टर्म्स के बारे में हमें पता भी नहीं होता, इवन की मीनिंग भी क्लियर नहीं होता. तो साथ साथ में जितनी भी टर्म्स मैं बोलूँगी और पढ़ाऊँगी, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले एनवायरमेंट इज़ एन constantly changing, and as our environment changes, so does the need to become increasingly aware of the environmental issues that are causing these changes. Within a massive increase in natural disasters, warming and cooling periods, and different types of weather patterns, people need to be a lot more conscious with the way they lead the lives in conjunction with the types of environmental issues our planet is facing. कहने का मतलब है कि जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, वेदर चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. अब ये क्यों चेंज हो रहा है? सो मैनी डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर, बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, अब नेचुरली भी हो रहा है और मैन मेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू भी जो है इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है. इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो है वो क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है जी. जिससे आज की डेट में हम इन्हीं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से जो है जूझ रहे हैं और उसी प्रेजेंट सिचुएशन में सिनेरियो में सर्वाइवल भी कर रहे हैं बहुत मुश्किल से. ठीक है जी. सो environmental issues are the harmful effects of human activities, that is anthropogenic activities, on the environment. Basically these include pollution, overpopulation, waste disposal, climate change, global warming, greenhouse effect, etc. ये सारी चीज़ें, और ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है ये सब कुछ. ये सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है. बेसिकली हमारा जो इन्वायरमेंट है हमने खुद ही ख़राब किया हुआ है. 60 to 70% जो है हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मैन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे इन्वायरमेंट डिप्लीट हुआ पड़ा है और आगे भी होता जा रहा है. और कोई 25 से लेकर 30% तक जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स या नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी हो रहा है. ठीक है जी. तो जो नेचुरल कैलामिटीज़ भी हैं या नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हैं, उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी ही एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है. ठीक है जी. सो वेरियस इन्वायरमेंटल protection programs are being practiced at the individual, organizational and government levels with the aim of establishing a balance between man and environment. बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारे प्रोग्राम्स या कंपेनिंग हो रही है, एजुकेशनल कंपेन्स चल रही हैं. गवर्नमेंट जो है अब क्या है, अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान है वो चलाया हुआ है प्रधानमंत्री ने, बहुत सारी ऐसी कंपेनिंग की हुई है जिससे हम सबको जागरूक होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट को किसी भी वजह से हमने डिप्लीट नहीं करना, नहीं तो एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे और वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ते चले जाएंगे. ठीक है जी. सो एनवायरमेंटल इश्यूज़ आर हार्मफुल. ठीक है जी. हमारा जो जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट है हमारी पूरी की पूरी होल इन्वायरमेंट पे, पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आर इंटरकनेक्टेड. दैट मीन्स वन इशू एक्सेलरेट द अदर.
दैट फॉर एग्जाम्पल वाटर पोल्यूशन एक्सेलरेट द रेट ऑफ एयर पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इन्वायरमेंटल जो हम भी एक्टिविटीज़ करते हैं एंथ्रोपोजेनिक लेवल पे भी, वो इंटरडिपेंडेंट है। एक एक्टिविटी करेंगे, उसकी दूसरी एक्टिविटी, वो एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को बेस दे जाएगी, उसका बेस बन जाएगी, और ये मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी क्रिएट अपने आप हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये नहीं करना है हमें, बहुत कम करना है। सो 3 तरह के इश्यूज़ हैं, लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़, रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो ये वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़, मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया के स्पेसिफिक जो है, ये एक पर्टिकुलर एरिया से संबंधित होती है। ठीक है जी। सो मैनी ऑफ टुडेज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो लोकल, वेयर लोकल में रेफर टू अ म्यूनिसिपल ज्यूरिसडिक्शन। एक पर्टिकुलर एरिया की ज्यूरिसडिक्शन में ये एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, सब एरियाज़ के अलग अलग हो सकते हैं। अ नेबरहुड और इवन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सच एज डंप और इंडस्ट्रियल साइट। एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन आर ऑल द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कहीं पे क्या होता है, किसी एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन है, किसी एरिया में कम पोल्यूशन है, किसी एरिया में जो है वाटर जो है उसकी किल्लत ज़्यादा है, वाटर स्कार्सिटी ज़्यादा, किसी एरिया में वाटर स्कार्सिटी इतनी नहीं है, पानी जो है वो खुला आता है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। जो प्रॉब्लम्स एरिया टू एरिया डिपेंड करती हैं, स्पेसिफिकली किसी एक एरिया की प्रॉब्लम जो है दूसरे एरिया से डिफरेंट होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में पहला आता है लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में वाटर डिस्पोजल की प्रॉब्लम। वाटर डिस्पोजल की प्रॉब्लम क्या है कि अब जगह जगह जैसे हम वाटर के अंदर कोई भी जैसे वेस्ट मटेरियल है या कोई भी ऐसा कूड़ा कचरा कुछ भी डाल देते हैं वाटर के अंदर, तो वो वाटर डिस्पोजल की प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है जी। कई एरियाज़ में लोग जागरूक हैं, वो वाटर के अंदर कोई भी ऐसी हार्मफुल या हजार्डस चीज़ें नहीं डालते हैं, वाटर को क्लीन रखने में जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन कई एरियाज़ में लोग जो हैं वो अनपढ़ होते हैं या इवन कि पढ़े लिखे होकर के भी वो जागरूक नहीं होते कि ऐसा करने से आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में उनके ऊपर ही इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वाटर डिस्पोजल की प्रॉब्लम। द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग और डिपोजिशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हम क्या करते हैं, कोई भी कूड़ा है, कचरा है, इवन कि कई बार तो जैसे अब रिलीजियस, हमारा जो इंडिया है वो रिलीजियस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। पंडितों के चक्कर में जाके हम क्या करते हैं, नारियल बहा देते हैं, कोई और चीज़, कोई सिक्के बहा देते हैं, आप ऐसा करें पानी में ये बहा दीजिए, उससे आपके जो वो ग्रह ठीक हो जाएंगे। ये सब चीज़ें ये सुपरस्टिशंस हैं। एंड इवन कई बार जो है हम जानबूझ के कई बार ऐसे काम कर जाते हैं या अनकॉन्शियसली वाटर में कुछ भी डाल देते हैं, उससे हमारा वाटर जो है 100% कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि 100% पूरा का पूरा पानी डिप्लीट कर देंगे, पीने लायक तक भी नहीं बचेगा। तो ये सब चीज़ें हैं वाटर डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स में आती हैं। द टर्म वेस्ट इज़ टिपिकली अप्लाइड टू सॉलिड वेस्ट। ठीक है जी। कौन कौन से वेस्ट हम पानी में डालते हैं, सॉलिड वेस्ट, सीवेज वेस्ट, हजार्डस वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है जी। तो इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट जो हैं हम अपने घरों को साफ़ करने के चक्कर में, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करने के चक्कर में सारे के सारे जो है पानी में बहाकर उनको जो है वो कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये भी एनवायरनमेंट ही डिप्लीट कर रहा है। तो ये लोकल लेवल पे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ठीक है जी। कई एरियाज़ में लोग नहीं करते, कई एरियाज़ में जो है वो कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है लोकल लेवल इश्यूज़ में, नेक्स्ट क्या है फ्रेश वाटर स्कार्सिटी। अब ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द वाटर डिस्पोजल प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले बताया था जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर वाटर डिस्पोजल की प्रॉब्लम हम करेंगे तो वहाँ पे उसी एरिया में, जिस एरिया में हम कर रहे हैं, वाटर में गंदगी डाल रहे हैं, उसी एरिया में फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी अपने आप ही पैदा हो जाएगी। फ्रेश वाटर मिलेगा नहीं, उसकी स्कार्सिटी हो जाएगी। तो ये भी सेकंड नंबर पर प्रॉब्लम हो जाती है लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ में। थर्ड प्रॉब्लम हो जाती है डिजर्टिफिकेशन की। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले ऐसी कोई लैंड जो पहले फर्टाइल हो, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो वही फर्टाइल लैंड जो है वो बैरन हो जाए, ठीक है, या अनफर्टाइल हो जाए। तो ये प्रॉब्लम होती है डिजर्टिफिकेशन की। अब इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, थर्ड आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। ये भी एक नॉर्मल बात है। किसी एरिया की जो है एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं पे कम लोग रह रहे होते हैं। ठीक है। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा जो है घर बने होते हैं, कहीं किसी एरिया में थोड़े कम जो है वो रेजिडेंट्स होते हैं। तो ये भी एक डिपेंड करता है एरिया टू एरिया।
पॉपुलेशन इंक्रीज से भी जो है लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन एक ऐसी, जैसे हम बढ़ते रहेंगे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते चले जाएंगे, उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो मतलब एक्सप्लॉयट करते चले जाएंगे अपने रिसोर्सेज को ओवर पॉपुलेशन के बेस से। तो ये एक लोकल लेवल पे भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और इवन कि रीजनल लेवल या ग्लोबल लेवल तक भी ये जो है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम जा सकती है। ठीक है जी। एंड डिज़र्टिफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। ये टर्म आई हुई थी पेपर में, तभी मैंने आपको ये डिटेल में दोबारा से करवा रही हूँ। डिज़र्टिफिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन ड्राई लैंड्स इन विच बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज़ लॉस्ट ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस और induced by human activities whereby fertile areas become increasingly more arid areas। फर्टाइल एरियाज़ जो है, पहले कोई एरियाज़ या लैंड फर्टाइल होती है, हम क्या करते हैं उसी लैंड को एक्सप्लॉइट करते चले जाते हैं ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में, या उसमें बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल फसलें उगा देते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में वहाँ पे जो है मॉडर्न फर्टिलाइज़र्स, केमिकल ओरिएंटेड फर्टिलाइज़र्स और भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन उस सॉइल इरोजन हो जाती है, लैंड बैरन हो जाती है, लैंड एरिड हो जाती है, फिर वो इतनी फर्टाइल नहीं रहती जैसे पहले होती है। तो ये सारी डिज़र्टिफिकेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोकल लेवल पे एरिया वाइज एरिया जो है वो हर कोई मतलब फेस करता है अपने लाइफ में। ठीक है जी। सो यहाँ से भी जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज़ टोटली लॉस ड्यू टू डिज़र्टिफिकेशन ऑफ लैंड। ये लोकल एनवायरमेंटल इशू है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, कार्बन साइकिल। ये भी लोकल एनवायरमेंटल इशू में कार्बन साइकिल जो है वो, उससे भी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस आ जाए कार्बन साइकिल में भी, तब भी जो है लोकल एनवायरमेंटल इशू में प्रॉब्लम आती है। सो क्या है कार्बन साइकिल? द कार्बन साइकिल डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस इन विच कार्बन एटम्स, ध्यान से सुनिएगा, साइंटिफिक टर्म है कार्बन साइकिल की, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। कोई भी टर्म जो है यूजीसी नेट पेपर 1 में टर्म उठा करके उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस इन विच कार्बन एटम्स कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ एंड देन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। कार्बन एटम्स जो हैं एटमॉस्फेयर से हमारी धरती पे आते हैं, एंड धरती से फिर कहाँ चले जाते हैं, फिर एटमॉस्फेयर के पास चले जाते हैं। तो ये साइकिल चल रहा है। ठीक है जी। तो ये साइकिल जो है जब डिस्टर्ब हो जाता है तो कार्बन साइकिल की प्रॉब्लम आ जाती है। सिंस आवर प्लैनेट एंड इट्स एटमॉस्फेयर फॉर्म अ क्लोज इन्वायरमेंट, द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द सिस्टम डज नॉट चेंज। ठीक है जी। हमारा इन्वायरमेंट जो है क्लोज इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जितना भी डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन होना चाहिए उससे जब बढ़ जाता है, उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, या साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उससे भी हमारी जो है वो लोकल लेवल पे या लोकल एरिया वाइज जो है इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, लोकल इन्वायरमेंटल इशूज़ में एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ठीक है जी। ऐसी कुछ प्रजातियां या स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होने वाली होती हैं या ख़त्म हो चुकी होती हैं। ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। किसी एरिया में कोई एनिमल होता है या बर्ड होता है या कोई ऐसा इंसेक्ट या क्रीचर होता है, उसकी स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड हो जाती है, मतलब वो ख़त्म होने वाली होती है या फिर ख़त्म हो ही चुकी होती है। ठीक है जी। तो ये भी एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, और ये भी लोकल एनवायरमेंटल इशू है। कौन सी? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, और लोकल लेवल पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इसके इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। पोल्यूशन की टाइप्स हो जाती हैं, जिसमें अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन फॉर एग्जांपल व्हीकल एमिशन से जो है वो जनरेट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं एयर पोल्यूशन के। व्हीकल एमिशंस हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन से एयर पोल्यूशन होती है, स्मोकिंग से एयर पोल्यूशन होती है, पावर प्लांट्स कंजम्पशन से एयर पोल्यूशन होती है। तो ये सारे जो हैं एयर में ऐसे सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो टॉक्सिक और बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस एयर में आ जाते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, पर्टिकुलेट्स हैं, सल्फर ऑक्साइड है, एंड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एयर में आ जाते हैं हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, उससे एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन आपको पता ही है कैसे होता है कि हम कोई जैसे सीवेज, इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं वाटर पोल्यूशन के। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो वाटर में हम डिस्पोज कर देते हैं, सीवेज या वेस्ट वाटर कर देते हैं।
माइनिंग एक्टिविटीज़ से जो है वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, मेरीन डंपिंग से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, एक्सीडेंटल ऑयल लीकेजेस से, जो ऑयल लीकेजेस होती हैं एक्सीडेंटल, उससे भी जो है वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर वाटर पोल्यूशन हुआ तो हम पिएंगे पानी, उसमें जो है इवन कि रिफाइनिंग के बाद भी उस पानी में केमिकल रह जाएंगे जो हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन बहुत ही मेन जो है वो पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन या फिर लैंड पोल्यूशन। ठीक है जी। इससे क्या होता है कि जैसे डिज़र्टिफिकेशन की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, ये भी सॉइल पोल्यूशन का ही एक पार्ट हो सकता है। या फिर सॉइल इरोजन इज़ ऑल्सो अ क्राइटेरिया ऑफ सॉइल पोल्यूशन। और बहुत सारी लार्ज स्केल पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जैसे कोई कूड़ा करकट है वो सॉइल में दबा दिया जाता है, डंपिंग कर दी जाती है। ठीक है, पिट्स बनाए जाते हैं, पिट्स में कूड़ा डाल दिया जाता है, पिट्स भर दिए जाते हैं। इस तरह से भी सॉइल इरोजन होती है और जो इट लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन और द लैंड पोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन। ये हम सबको पता है, घरों घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, बाहर जब जहाँ पे भी हम जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन है। और दैट इज़ जो ये पोल्यूशन है दैट इज़ मेजर्ड ऑन द डेसिबल स्केल। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डेसिबल स्केल, DECIBEL, डेसिबल स्केल में जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन को हम मेजर करते हैं। और हमारा क्या है, 80 से लेकर 120 डेसिबल जो है हमारा एक बेरेबल होता है नॉइस पोल्यूशन, हमारे कानों को बेरेबल होता है। और ऑन एन एवरेज उससे थोड़ा अगर हाई चला जाए 125 डेसिबल तक जो है वो इरिटेशन क्रिएट करता है एयर्स में। एंड इवन 100 dB से ज़्यादा बढ़ जाए या 100 डेसिबल पॉइंट तक चला जाए तो ये हमारे कान को जो है वो उनके उसके पर्दे भी फाड़ सकता है और हमें जो है वो बहरा भी कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, सो ये अनबेरेबल नॉइस होती है जो हमें कहीं से भी हमारे कानों में आ जाती है और ये नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हो गई लोकल लेवल पे, लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ मैंने अभी तक आपको कराए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये दोनों इकट्ठे क्यों लिखे हुए हैं, बिकॉज रीजनल का मतलब होता है किसी भी एक कंट्री का इशू। ठीक है जी, एक नेशन का। ग्लोबल मतलब पूरे, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ का इशू। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ जो हैं वो एक कंट्री का इशू भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का भी इशू हो सकता है। तो ये इकट्ठे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आता है, फ्रेश वाटर स्कार्सिटी। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर जिस वाटर में सीवेज की प्रॉब्लम होती है, वाटर पोल्यूशन होता है माइनिंग एक्टिविटीज़ से, मरीन डंपिंग से, एक्सीडेंटल ऑयल लीकेजेस से, या इंडस्ट्रियल वेस्ट से, या किसी भी तरह का जो वाटर में हम गंदगी फैलाते हैं, उससे फ्रेश वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। इवन ड्रॉट्स भी आते हैं, वाटर सूखने लगता है, उससे भी स्कार्सिटी हो जाती है। ये रीजनल लेवल पे भी होती है प्रॉब्लम, ये ग्लोबल लेवल पे भी होती है और हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है इसमें, ग्लोबल वार्मिंग का इशू। ठीक है जी। ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है वो ज़्यादातर जो किस लेवल पे रहता है, ग्लोबल लेवल पे रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ प्राइमरली अ प्रॉब्लम ऑफ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 इन द एटमॉस्फेयर। जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। विच एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ट्रैपिंग हीट एंड वार्मिंग द planet as we burn fossil fuels like coal, oil and natural gases for energy, or cut down and burn forests to create pastures and plantations. Carbon accumulates and overloads our atmosphere. ये सारे causes होते हैं global warming के। Certain waste management and agriculture practices aggravate the problem of releasing more potent global warming gases such as methane and nitrous ऑक्साइड्स। ठीक है जी। सो यहाँ पे मीथेन गैस का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड्स का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह के इंग्रेडिएंट्स अगर ज़्यादा लेवल पे हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाएँ तो वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो करती हैं। एंड बेसिकली क्या है, सो यहाँ पे ये देखा जाए कि द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एमिशंस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐड टू द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग ही कहते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, सो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। सो दिट्स लीड्स टू अन इंक्रीज इन अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कॉजिंग। जब इन सब एक्टिविटीज़ से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो है वो
ग्लोबली जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की इशू आ जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले भी समझाया था। ऐसे ये एक बहुत सारे नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं जो कि जैसे एयर कंडीशन से या फिर रेफ्रिजरेटर्स की जो गैस से प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है जी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं इसको। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है रीजनल ग्लोबल लेवल पे इशू, एग्रीकल्चर का इशू। अब आप कहते हैं कि खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी करने से कौन सा इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर आजकल का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, एडवांस हो चुकी हैं। ठीक है जी। जिसमें केमिकल ओरिएंटेड फर्टिलाइज़र्स, ठीक है जी, और बहुत मॉडर्न मशीन्स इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है जी। एंड फोम बेस्ड या केमिकल बेस्ड जो है वो उसमें जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, और ये सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस लेवल की, मॉडर्नाइज लेवल की यूज़ होती हैं, जिससे हमारी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इफ़ेक्ट होती है। ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें, और बेसिकली क्या है, इससे जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डिग्रेड हो रहा है। ठीक है जी। और हमारी सॉइल इरोजन भी, सॉइल प्रोडक्टिविटी भी जो है वो डिप्लीट हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, पोलर मेल्टिंग। पोलर मेल्टिंग क्या है, अब देखो पोलर रीजन्स होते हैं, ठंडे इलाके होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, ग्लेशियर्स हो गए, उसमें उनमें ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं, तो वो मेल्ट हो रहे हैं। पोलर मेल्टिंग का मतलब होता है कि जो पोलर आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। उससे भी क्या होता है, जब वो मेल्ट हो जाएंगे पानी का लेवल बढ़ जाएगा। पानी का लेवल अगर बढ़ा रिवर्स में, ओशंस में या फिर समुद्रों में, तो वो बाढ़ लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। सुनामी, बाढ़, ठीक है जी, और वाटर साइक्लोन्स को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे भी हमारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें। ठीक है जी। नेक्स्ट लेवल पे क्या आ गया, एनवायरमेंटल इश्यूज। ये कौन से कॉन्टिन्यूड चल रहे हैं, ग्लोबल एंड रीजनल वाले। ठीक है जी। ओशन एसिडिफिकेशन बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट पेपर 1 में। ओशन एसिडिफिकेशन क्या मतलब होता है कि ओशंस में, ठीक है जी, उसमें क्या है, एसिड्स बढ़ जाते हैं, एसिड्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी। अब क्या करते हैं इसमें, मैं आपको मैं डिटेल में मीनिंग बता देती हूँ। ओशन एसिडिफिकेशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ह्यूमन जनरेटेड CO2 एमिशंस। CO2 एमिशंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, जो हम ह्यूमंस करते हैं, ठीक है जी, इन्वायरमेंट में फैलाते हैं। उससे जो है ओशन एसिडिफिकेशन जो है प्रॉब्लम वो इंक्रीज़ हो रही है थ्रू बेसिक केमिकल रिएक्शंस। Basic chemical reactions, the atmospheric CO2 emissions absorbed by sea water lead to a drop in the ocean's pH balance. देखिए जी, ओशन का भी अपना जो वाटर लेवल है उसका अपना pH बैलेंस होता है, pH क्राइटेरिया होता है। जो हम CO2 एमिशंस कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसका बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है ओशंस के ऊपर, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओशंस के ऊपर पड़ने की वजह से ओशन के वाटर लेवल का pH जो है वो कम हो रहा है, जिससे जो है ओशियन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है जी। इन टर्न कॉजिंग वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग CO2 लेवल्स। इसका भी बेस क्या है, CO2 इंक्रीज। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज लोकल एंड रीजनल लेवल पे। एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन मैंने आपको कराया, एयर पोल्यूशन भी कराया था, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सारा करवा दिया। सो एयर पोल्यूशन जो है वो लोकल लेवल पे भी है और वो रीजनल या फिर ग्लोबल लेवल पे। आजकल तो वैसे पूरे वर्ल्ड में ही एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, ये बहुत ग्लोबल इशू बन चुका है एयर पोल्यूशन का। सो बहुत ही ये ड्रास्टिक इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है। ठीक है जी। एयर पोल्यूशन दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, एयर पोल्यूशन होता क्या है, तो ये ग्लोबलाइज्ड लेवल पे बहुत बढ़ रहा है, जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या है, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ में सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन मैंने आपको करा दिया, सॉइल पोल्यूशन। सो ये इस तरह से हजार्डस वेस्ट एंड सीवेज स्पिल्स, नॉन सस्टेनेबल farming practices such as heavy use of inorganic pesticides, strip mining, deforestation, and other destructive practices, household dumping, littering. Soil contamination can lead to poor growth and reduced crop yields, loss of wildlife habitat, water and visual pollution, soil erosion and desertification. ये soil pollution की प्रॉब्लम जो है, इसके कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स सारे लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको अभी इस स्लाइड में सॉइल पोल्यूशन कराया भी है, तो ये सारे जो हैं आप देख लीजिए कि सॉइल पोल्यूशन
से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो सकता है, वाटर एंड विजुअल पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकती है, डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, सॉइल कंटेमिनेशन हो सकती है, पुअर क्रॉपिंग हो सकती है। ठीक है जी, सो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एमिशन। मैंने आपको पहले बता दिया CO2 एमिशन जो है वो हर तरफ अगर फैल जाए, ज़्यादा मात्रा में CO2 हमारे एटमॉस्फेयर पे आ जाए तो उससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड जो है ओशन एसिडिफिकेशन जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशन से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में नेक्स्ट क्या है? एसिड रेन की प्रॉब्लम। ये भी ग्लोबलाइज्ड प्रॉब्लम है, ये एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फेसिंग एसिड रेन प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, वाटर बॉर्न डिसीजेज प्रॉब्लम। ये तीनों अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू WHO मोर देन 3.4 मिलियन इंडिविजुअल्स डाई एवरी ईयर ऑफ डेथ एंड डिसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम अभी बात करें तो कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है कि आज की डेट में 25 लाख प्लस हो चुका है थ्रू आउट हमारे इंडिया कंट्री में। 25 लाख से ज़्यादा जो है कोरोना वायरसेस के जो है पेशेंट्स फैल चुके हैं और इन पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 2 पे आ चुका है। तो इस तरह की डिसीज़ेस जो है वायरस ओरिएंटेड, ठीक है जी, कंटेमिनेशन ओरिएंटेड, इन्वायरमेंटल, वो भी इन्वायरमेंटल इशू ही था। ठीक है जी, इन्वायरमेंट में फैल गया, अब क्या है कम्युनिटी में फैल रहा है कोरोना वायरस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेथ का कारण बन सकती हैं। डिसीज़ेज़ का, बड़ी बड़ी डिसीज़ेज़ जो हैं ऐसे ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं कि जिनका हमें डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि क्या इसकी मेडिसिन हो सकती है, क्या इसका वैक्सीनेशन हो सकती है। अभी तक तो निकला भी नहीं है कोरोना वायरस को मारने का भी कोई भी वैक्सीनेशन या फिर कोरोना वायरस से ठीक होने का कोई भी ऐसा कोई पिल या फिर कोई टैबलेट नहीं निकली अभी तक। तो ये चीज़ें जो हैं ये पूरी इन्वायरमेंटल इशू में भी हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर्स हो सकती हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है? एसिड रेन। अभी ये फैक्टर्स हमें पढ़े, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ये हम अभी जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एसिड रेन क्या होती है? सो ये एसिड रेन को हम एसिड डिपोजिशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। एसिड डिपोजिशन इज़ द सेकेंड नेम ऑफ एसिड रेन। ठीक है जी। इट इज़ कॉज्ड बाय एयरबोर्न एसिडिक पॉल्यूटेंट्स एंड हैज़ हाईली डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स। एयर में जब एसिड्स की मात्रा, ठीक है जी, टॉक्सिक एसिड्स की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, उससे क्या होता है? इट रिजल्ट्स इनटू द एसिड रेन। एसिड रेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल, कैन नॉट बी सीन। ये हम देख नहीं सकते कि कहाँ पे वो ऐसे जो है केमिकल्स बन रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, हम देख नहीं सकते। सो द इनविजिबल गैसेस दैट कॉज एसिड रेन यूजुअली कम फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स और कोल बर्निंग पावर प्लांट्स। दो मेन रीजंस हैं, या तो फिर ऑटोमोबाइल्स या ट्रांसपोर्टेशन से जो है ये रिलीज़ होती हैं इस तरह के कार्बन, इस तरह के केमिकल्स, या फिर कोल बर्निंग पावर प्लांट से जो है वो एसिड रेन के कार्बन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है जी। सो कॉजेज़ क्या हैं? सो प्राइमरी कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये इस तरह के साइंटिफिक टर्म्स यूजीसी पेपर 1 में आ जाती हैं कि एसिड रेन जो है वो क्या उसका बेस है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये कॉजेज होते हैं एसिड रेन को लेके आने में। दीज केमिकल्स आर रिलीज्ड बाय सर्टन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड रिजल्ट द मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ यूरोप एज वेल एज द US सफर सिवियरली फ्रॉम एसिड रेन। Most sulfur dioxide comes from power plants that use coal as their fuel. These plants emit 100 million tons of sulfur dioxide, 70% of that in the world. बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पे जो है ये एसिड रेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके मेन सोर्सेज क्या है? एयर में क्या आ जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है मिल करके एसिड रेन को बनाते हैं। चलिए आगे क्या है? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है? इज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉजेज इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन डिप्लीशन जो है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में, ये रीजनल लेवल पे भी है, कंट्री टू कंट्री भी है, एंड इवन नेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड एंड इवन पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ओजोन डिप्लीशन इज़ अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज इट्स इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। हमारे इन्वायरमेंट में यूवी रेज, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, को बढ़ा देती है ओजोन डिप्लीशन की प्रॉब्लम।
दैट रीचेज अर्थ सरफेस। ये जो यूवी रेज हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाती हैं। इन रेडिएशन, ये इतनी घातक होती हैं ये रेडिएशन, जिससे हम क्या क्या हो सकता है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट्स एंड जेनेटिक एंड इम्यून सिस्टम डैमेज। हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है इन यूवी रेज से, अल्ट्रावायोलेट रेज से, जो कि ओजोन डिप्लीशन से धरती पर आती हैं, एटमॉस्फेयर टू अर्थ जो है वो आती हैं। हमारा आई जो है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, आई डिसऑर्डर हो सकते हैं, आई कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, और स्किन कैंसर तक जो है ऐसी चीज़ें। कई बार क्वेश्चन आता है कि ओजोन डिप्लीशन से कौन कौन सी बीमारियां, मतलब कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाती है उससे कौन कौन सी डिजीज क्रिएट होती हैं, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। सो क्या है इसका मेन कारण, क्या है द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड द ओजोन होल इज मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स, एस्पेशली मैन्युफैक्चर्ड हेलोकार्बन्स, रेफ्रिजरेंट्स, solvents, propellants and foam blowing agents, chlorofluorocarbons, HCFCs, halogens refer to an ozone depletion substances। ये सारे जितने भी मैंने आपको सब्सटेंसेस बताए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, रेफ्रिजरेंट्स हैं, फोम ब्लोइंग एजेंट्स हैं, ठीक है जी, सॉल्वेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, ये सारे मिल करके जो है ओजोन लेयर को, जो हमारे ऊपर ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहे हैं। और ये सारी बेसिकली हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ही हैं। ठीक है जी, ये सारी एक्टिविटीज़ हम खुद ही कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को डिप्लीट करने के लिए। ठीक है जी। सो ये सारे मेन रीजंस हो सकते हैं। और अब इतनी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली, लोकल लेवल पे एनवायरमेंटल इश्यूज डिस्कस कर लिए, ग्लोबल एंड रीजनल लेवल पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली। अब सॉल्यूशंस क्या हैं, अभी हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया, अभी हम लास्ट की जो है वो स्लाइड पे आ चुके हैं। सोल्यूशन क्या है? सो सोल्यूशंस टू एनवायरमेंटल इश्यूज, सबसे पहले क्या है, बहुत सारे सोल्यूशंस है। हर प्रॉब्लम को लेकर के जो है, हर प्रॉब्लम का अपना अपना सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन अभी हम जनरलाइज्ड वे में सोल्यूशंस जो है डिस्कस करने लगे हैं। सो द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सोल्यूशंस फॉर द एनवायरमेंटल इश्यूज और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या है, रिप्लेस डिस्पोजल आइटम्स विद रीयूजेबल आइटम्स। बहुत मेन बात है। ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, ये 3 तरह के 3 R's होते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। ठीक है जी। उसमें वन ऑफ द उसने डिस्कस किया कि फर्स्ट लेवल पे कहता है रिप्लेस डिस्पोजेबल आइटम्स विद रीयूजेबल आइटम्स। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, द यूज़ ऑफ पेपर शुड बी अवॉइडेड, बेसिकली प्लास्टिक पेपर्स, पेपर एज वेल एज मेजरली जो है वो प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक पेपर्स को अवॉइड करें, उसका यूज़ बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा क्या है, बिकॉज वो कभी भी प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक पेपर्स जो है कभी भी वो मतलब यूज़ के बाद भी वो ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे उसको जला भी दें, उसको डिस्पोज भी कर दें, तब भी वो उसकी जो टॉक्सिक है या उसके पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो ये नहीं हमें यूज़ करने। नेक्स्ट क्या है, कंजर्व वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली हमें करनी चाहिए। 4th नंबर पे सपोर्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है जी। एंड 5th इज रिसाइकल द वेस्ट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे सल्यूशंस हैं। सो एनवायरमेंटल सोल्यूशन इश्यूज आर अ वार्निंग, ये इश्यूज अभी जो चल रहे हैं ये आने वाले जनरेशन्स के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज और वार्निंग बने हुए हैं। So these are the warnings of the upcoming disasters. If these issues are not controlled, there will be soon no life on earth. ये तो सबको ही पता है, बट फिर भी हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इतनी नेगेटिव होती जा रही हैं कि हम पॉजिटिव एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि 90% नेगेटिव या डिप्लीशन ओरिएंटेड ही कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सोल्यूशन से अगर हम चलेंगे, अच्छी अच्छी पॉजिटिव एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ करेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट हम बहुत अच्छे लेवल पे ठीक हो सकता है। ठीक है जी। सो लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि सेव एनवायरनमेंट, अल्टीमेटली हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, उसको सेव करना है। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं। ठीक है जी। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अपने फ्रेंड्स या और नीडी स्टूडेंट्स को आप ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, उनको चैनल शेयर कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा रिसोर्स बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 100% जो है फुल ऑन सिलेबस जो है यूजीसी पेपर 1 का इस चैनल के ऊपर चल रहा है। ठीक है जी। इससे पहले 5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं फुल फ्लेज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। कौन कौन से? टीचिंग एप्टीट्यूड फुल फ्लेज हो चुका है कंप्लीट, रिसर्च एप्टीट्यूड फुल फ्लेज हो चुका है, कम्युनिकेशन 100% का कंप्लीट हो चुका है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 100% कंप्लीट हो चुका है, एंड उसके बाद जो है वो
हुआ था हायर एजुकेशन, वो भी 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं छूटा। और 6th नंबर पे यूनिट मैंने स्टार्ट किया है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का, तो वो भी अभी क्रोनोलॉजिकल मैनर में एज पर द सिलेबस 1 बाय 1 जो है सब टॉपिक जो है वो चल रहे हैं। आप सिलेबस खोल के देखिए। इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीक मैंने करा दिया था SDGs एंड MDGs करा दिए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स करा दिए थे मैंने आपको। उसके बाद जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी थी। और अब जो है मैं आपको आज मैंने ये वाला इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का जो है वो टॉपिक भी करवा दिया। नेक्स्ट जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो उसकी वीडियो मैं लेकर के आऊँगी। So stay tuned for that and share our channel, flourish our channel, subscribe our channel, like the videos, and even you have any kind of comment or any kind of recommendations, just आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड हमें 100% सपोर्ट करें, पूरे इंडिया में चैनल फ्लरिश करें ताकि सबको जो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, उनको घर बैठे बैठे जो है इस चैनल का पूरा एडवांटेज लेने का मौका दें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं अपनी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।